Assalamualaikum student, this is lecture number 3. Now we started chapter number 2, which is about fundamentals of the analysis of algorithm efficiency by Dr. Salma Rashid. These are the metrics for the analysis of algorithm. First one is the approaches. We already discussed in the previous lecture also what are the metrics which are related to the analysis of algorithm. First one is the correctness. How your algorithm is correct. Well, it will be terminated or finiteness. These are the things which you have to consider in your algorithm. Second one is the time efficiency, then space efficiency, and the last one is optimality. These are the issues related to any algorithm which we need to consider for the good algorithm. And the next point is what type of approach we use. Theoretical analysis approach or empirical analysis, both are very important. Theoretical analysis are the generic algorithm analysis which is fall for all algorithm, but for empirical analysis it would be different. Theoretical analysis of time efficiency. Time efficiency is analyzed by determining the number of repetition of basic operation as a function of input size. So basic operation क्या होते हैं? The operation that contributes the most towards the running time of the algorithm. So here is the term we represented. T of n belongs to COP C of n. In this expression, T is running time, N is input size, and then small c is execution time for the basic operation of a cost, and C for the number of time basic operation is executed, N is the input size. So for different input size, different costs you can measure. Input size and basic operation examples. First we talk about the problem, then input size measure and basic operation. Suppose searching for a key in a list of n elements. इसमें input size measure क्या होगा? Number of list items n and how many key operations, key comparisons you have done. This is the important in this algorithm problem. Multiplication of two matrices, matrices dimension or total number of elements belong to input side measure, and the basic operation is multiplication of two numbers. Third is the checking primality of the integer n. So here is the n size, number of digit, and how many times division happens. So it's the basic operation. Typical graph problem, number of vertices or edges. So here is the basic of visiting vertices are traverse and averages. So this is the example to show you how input size and basic operation example. This is second method, empirical analysis of time efficiency. Empirical जो मैंने आपको बताया था रियल टाइम एनालिसिस कहलाता है या एविडेंस बेस्ड एनालिसिस कहलाता है. इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि सिलेक्ट ए स्पेसिफिक टिपिकल सैंपल ऑफ इनपुट्स, कि आपके पास जो स्पेसिफिक इनपुट ऑफ सेट ऑफ डाटा है उसके ऊपर जो है, जैसे अगर आप बात करें कि आपने जो है कोई सर्च करना है एलिमेंट, तो आपके पास सपोज 10 एलिमेंट्स हैं और वो आइटम जो आप फाइंड कर रहे हैं वो 9th लोकेशन पे, तो आप उसकी स्पेसिफिकली बात करेंगे कि उसकी क्या एफिशिएंसी है. ठीक है. यूज ए फिजिकल यूनिट ऑफ टाइम, मिली सेकेंड, और काउंट एक्चुअल नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन एग्जीक्यूशन. तो उसको हम क्या करते हैं मिली सेकेंड्स में या एक्चुअल ऑपरेशन का एक साइकिल करके उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और इसी तरह हम एनालाइज करते हैं उस एम्पेरिकल डाटा को, कितने कंपैरिजंस के बाद हमें वो चीज़ अचीव हुई है. जी, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप काइंड्स के हमारे पास जो है वो एनालिसिस किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ द बेस्ट केस, फिर एवरेज केस, एंड देन हमारे पास होता है वर्स्ट केस. फॉर सम एल्गोरिथम एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द इनपुट. तो किस तरह की इनपुट होती है कि आपके पास वर्स्ट केस क्या है, सी ऑफ एन. अगर आप इस तरह से लिखेंगे सी कैपिटल बेस में वर्स और एन, तो मैक्सिमम और इनपुट ऑफ साइज एन, कि आपको मैक्सिमम की कंपैरिजन करने पड़े उस इनपुट साइज पे. सपोज इसमें अगर आप लें कि आपके पास एक लिस्ट है
और उसमें आपको एलिमेंट फाइंड हुआ है सबसे लास्ट एंट्री के ऊपर, तो इट्स मीन कि आपको सबसे ज़्यादा की कंपैरिजन एन करने पड़े हैं, तो ये उसका क्या होगा, वर्स्ट केस होगा। इसी तरह से बेस्ट केस क्या होता है, सी बेस्ट ऑफ एन मिनिमम ओवर इनपुट साइज। इफ़ अगर आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो आपको फर्स्ट लोकेशन या फर्स्ट 2-3 लोकेशंस में मिल जाता है और आपको 10 कंपैरिजन या 9 कंपैरिजन नहीं करने पड़ते और एवरेज कंपैरिजन से भी कम होते हैं, तो वो हमारे पास बेस्ट केस आता है। और लास्ट वन जो कि हमारा सबसे ट्रिवियल केस होता है, एवरेज केस कहलाता है, उसको इस तरह से हम राइट करते हैं, एवरेज केस ओवर इनपुट्स ऑफ साइज n। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द बेसिक ऑपरेशन विल बी एग्जीक्यूटेड इन टिपिकल इनपुट नॉट द एवरेज ऑफ वर्स्ट एंड बेस्ट, यानी इसमें आपको लोकेशन 5, 6, 7 कोई भी इसमें हो सकता है, 2 से लेकर अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं 8 तक के दरमान में कैटेगरी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, और एवरेज केस सबसे ज़्यादा लाइक करता होता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बेसिक ऑपरेशन कंसिडर एंड रैंडम वेरिएबल्स अंडर सम अजम्पशंस अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इनपुट साइज है। तो ये सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि एवरेज केस जो है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा लोकेशन पे होता है, तो आपको उसमें ज़्यादा कंपैरिजन जो है ना तो बेस्ट होते हैं ना वर्स्ट होते हैं, लेकिन एवरेज होते हैं, और एवरेज आपको सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और सबसे ज़्यादा ट्रेवलर एक तरह से एनालिसिस होता है। ये आपके पास एक एल्गोरिथम है स्कंजल सर्च का, ये आपके पास राइट हुआ है। स्कंजल सर्च में क्या होता है, एक एरे होती है और एक की आपने देना होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस कैसे बनता है। ये आपके पास एक नॉर्मल सूडो कोड की फॉर्म में लिखा हुआ एल्गोरिथम है, जिसमें हमने किया आई को 0 से इनिशियलाइज किया है, और हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों एरे में, वो जब तक आई लेस देन 10 रहेगा और जब तक हमें वो की नहीं मिलेगी तब तक वो आइटरेट होता रहेगा और आई उसमें एड अप होता रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो आई है वो लेस देन n हो जाए तो हम फौरी तौर पर रिटर्न आई कर देंगे, एल्स -1 हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो वर्स जो कंपेरिजन होंगे या वर्स केस होगा, उसमें हमारे पास कितने कंपेरिजन होंगे, n की कंपेरिजन, यानी कि सबसे लास्ट में आइटम वो हमें मिलेगा, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन सबसे ज़्यादा आए हैं, तो इस वजह से हम उसे n की कंपैरिजन्स कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इसी में अगर वो एलिमेंट हमें फर्स्ट लोकेशन पे मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि ये एक कंपैरिजन से हम अचीव हो गया, तो ये इससे इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस है। एवरेज केस क्या है कि आपके दरमियान में कहीं पे भी वो लाई कर सकता है, उसके लिए आपके पास n+1/2 का फार्मूला है कि वो अज्यूमिंग के कुड बी इन ए एरे जो कि किसी भी मिडल वैल्यू के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास वे है एक एल्गोरिथम के बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस को आपको दिखाने का या समझाने का। दिस इज द वन एग्जांपल। टाइप्स ऑफ फार्मूला फॉर बेसिक ऑपरेशन काउंट, तो ये हमारे पास फार्मूला है, और जितना हमारे पास इनपुट होगी, सपोज हमारे पास इनपुट है 5 की, जो पीछे हमने लीनियर सर्च किया, तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको एटलीस्ट करने पड़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर 10 है तो सी ऑफ 10 जो है, अगर हमारे पास 10 के एरे उसमें से हमने कोई वेरिएबल जो है या वैल्यू जो है ये की फाइंड करनी है, तो 10 - 1/2, तो ये हमारे पास 5 और यहाँ से 9 रह जाएगा, तो ये एटलीस्ट कितने हो जाएंगे, 45, 5 इंटू यहाँ से हमारे पास 9 आएंगे, तो ये हमारे पास 45 ऑपरेशंस जो हैं एटलीस्ट हमें करने पड़ेंगे। अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो स्पेसिफाई मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा, तो जस्ट हमने उसको इसके, क्योंकि 2 लूप्स हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अभी आपके समझने के लिए आप यही समझ लें कि इसकी हार्डेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी n² है, तो 0.5 से सपोज हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आ जाएगा। फार्मूला इंडिकेटिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ विद अननोन मल्टीप्लाई कांस्टेंट, कि हमें नहीं पता कि कितने ग्रोथ से ये जो ये है वो ग्रो करेगा ऑपरेशन, तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं cn², ठीक है। तो ये आप तीनों फार्मूले किसी भी हमारे पास जो सॉर्टिंग है जिसमें 2 लूप्स लग रहे हैं, आप उन सब पे ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या चीज़ है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एक तरह से आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स का उसकी एक्सपेंशन है कि कितनी होती चली जाएगी। जैसे अगर n बहुत स्मॉल है तो हो सकता है आपका
एकदम बहुत अच्छा काम करे, फिर आप इसको बढ़ाते चले जाएं तो वो आपके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और उसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन टाइम जो है उसके साथ ही इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और इतना इंक्रीज़ भी हो सकता है कि आपके पास वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए। एग्जाम्पल ये कि हाउ मच फास्टर विल एल्गोरिथम रन ऑन कंप्यूटर दैट इज़ ट्वाइस एज फास्ट, and the other example is how much longer does it take to solve the problem of double input size। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आपको एक रिदम दे दिया जाए और उसकी जो मशीन है वो बहुत फास्ट है तो उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि फास्ट मशीन की वजह से वो शायद जल्दी रन हो जाए। इसी तरह अगर एक इनपुट है उसको हम डबल कर दें तो फिर क्या होगा कि वो हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम है उस इनपुट साइज के लिहाज से वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम n टेंस टू इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा। ये देखेंगे डिफरेंट हमारे पास ये n की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के वैल्यूज़ हैं जो कि आगे अभी आएंगे कि कौन कौन सी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस हैं। यहाँ पे आपको बताने के कोशिश करें तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स ये n जो है वो सिंपल लीनियर है, और n स्केयर n जो है ये हमारे पास लॉगरिथम है, ये n अगेन हमारे पास लीनियर, फिर ये लॉगरिथम और जो हमारे पास लीनियर है उसका मिक्सचर है। इसी तरह n क्यूब है, n स्केयर है, n क्यूब है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल। ये इतनी ही हमारे पास एफिशिएंसी क्लासेस हैं एल्गोरिथम की। तो जैसे जैसे आप इसमें वैल्यू n की पुट करेंगे आप देखेंगे कि जो n का बिहेवियर है वो हर वैल्यू के अगेंस्ट चेंज हो रहा है, यानी जितनी फास्ट मशीन होती जाएगी उसके लिहाज से उसका टाइम चेंज होता जाएगा। ये देख लें इस तरह से। इसमें अगर आप देख लें कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा है तो वो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो है वो लॉग वाला सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 जो इस पर 4 है तो इसके लिए ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इवन ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इसलिए शो नहीं हो रही कि ये एक्सप्रेसिबल है, यानी उनको एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता है। तो जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी क्लास बढ़ती है और एल्गोरिथम जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। यहाँ पे हम एसिम्प्टोटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास बेसिकली अ वे ऑफ comparing function that ignore constant factor that small input size, because big O एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी क्लास है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास वर्स्ट केस को डील करती है। क्लास ऑफ फंक्शन f of n that grow no faster than g of n, यानी ये हमेशा स्लो ही होगा और इसका जो g of n होगा वो f of n से फास्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह थीटा हमारी दूसरी क्लास है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं क्लास ऑफ फंक्शन f of n that grow at the same time as g of n, यानी कि ये एवरेज केस में आती है कि जो आपने टाइम अप्रॉक्सीमेट रखा था उसी टाइम पे वो कंप्लीट हो गया। ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन ये आपका पास फास्टेस्ट है, यानी ये कम से कम उस टाइम क्लास ऑफ फंक्शन दैट ग्रो एटलीस्ट एज फास्ट एज जी ऑफ एन। तो इसको आगे हम ग्राफ्स में भी देखेंगे कि ये आपके पास अगर आप इस तरह से ग्राफ बना लें और ये आपके पास एफ ऑफ एन है, ठीक है। थीटा का बिहेवियर सेम इसी पे लाई करेगा, लेकिन जो बिग ओ है वो वर्स्ट केस है, वो उसका जो है टाइम ऊपर चला जाएगा, और जो लास्ट वन ओमेगा है उसका टाइम आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा आपके एफ ऑफ एन से, यानी ये थोड़ा सा आपका फास्ट होगा एज कम्पेयर टू आपके एफ ऑफ एन दैट ग्रो एटलीस्ट एज फास्ट एज जी ऑफ एन। इसको शो करने के लिए हम ग्राफिकल पिक्टोरियल डायग्राम्स देखते हैं और इसको आगे आने वाली एग्जांपल्स में भी हम करेंगे, वहाँ आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जी ये बिग ओ का है, ठीक है। इसमें आप देख लें कि ये हमारे पास टी ऑफ एन, ठीक है। तो टी ऑफ एन जो है ये जो आपके पास एक आप कह लें कि आपने टाइम जो है एक एल्गोरिथम का जो एल्गोरिथम है एफ ऑफ एन उसका आपने अगर ये किया हुआ कि इतने में ही कंप्लीट होगा, तो बेसिकली जब आप उसका बिगो हो जाएगा, बिगो का मतलब है वर्स्ट केस कि वो अपने टाइम से ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो यानी कि अगर आपने 1 आवर सपोज किया था
और ये 1 आवर 50 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है, तो इट्स मीन कि ये ऊपर आपके पास एक कांस्टेंट साथ ऐड हो गया है कि आपका ये टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा मूव हो गया है। ठीक है, तो यानी अगर फंक्शन अपने कैलकुलेटेड टाइम से किसी भी वजह से ज़्यादा टाइम ले लेता है और बार ऊपर चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि वर्स्ट केस, और उसको हम बिग ओ से शो करते हैं। कोई भी एल्गोरिथम होगा, हम उसको लास्ट में या नेक्स्ट लेक्चर एग्जांपल्स से भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है कि बिग ओ क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर आप इसको अपर बाउंड और लोअर बाउंड में देखें तो ये आपके फंक्शन का अपर बाउंड है, यानी इसको ज़्यादा टाइम जो है वो कितना लग सकता है कि वो आप बिग ओ से शो करते हैं कि इसका बिग ओ जो है वो ये बन रहा है, या इसका अपर बाउंड जो है इस फंक्शन का ये बन रहा है, क्योंकि इसको इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बिग ओमेगा। ओमेगा जो है बिल्कुल अपोजिट है जो हमारे पास बिग ओ है। वहाँ पे हम अपर बाउंड लेते हैं और यहाँ पे हमें लोअर बाउंड लेना है, यानी कि हमारा टाइम जो है एक्वायर्ड एल्गोरिथम से कितना लो पे गया, यानी एफ ऑफ एन ये हमारे पास बार थी, ये देखें ये कितना अपने टाइम से पहले कंप्लीट हो गया। यानी अगर आपने 1 आवर सपोज किया हुआ था तो ये बेसिकली 50 मिनट्स में या इस तरह से लो टाइम में कंप्लीट हुआ है। तो आप एक कांस्टेंट के साथ इसे शो करें कि ये आपके उस प्रोग्राम का लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड हमेशा ये होता है जो कि आपके अपर बाउंड से अपोजिट होता है, यानी कितना कम से कम इसने अपना फास्ट तरीके से कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हम इसको लिखेंगे टी ऑफ एन बिलोंग्स टू ओमेगा जी ऑफ एन। अब ये लास्ट बिहेवियर है थीटा। थीटा जो है अपर एंड लोअर बाउंड दोनों के दरमियान में लाई करने वाले केसेस के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो टी ऑफ एन यहाँ है, इसमें आपके पास थोड़ा सा अपर बाउंड और थोड़ा सा लोअर बाउंड दोनों का बिहेवियर ऐड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक एरे ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका एलिमेंट बिल्कुल मिडल में नहीं लाई करता, कभी आपको जो सर्च किया वो यहाँ पे इसको जो सर्च करते मिल सकती है, यहाँ से मिल सकती है। तो ये वो बिहेवियर्स कहलाते हैं जहाँ पे आपके नंबर ऑफ कंपैरिजंस एवरेज केस में कहलाते हैं, और इसको हम थीटा बिहेवियर से शो करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपका जो ऑलमोस्ट टाइम आपने 1 आवर रखा है तो 1 आवर 5 मिनट्स या फिर 55 मिनट्स, ये वो केसेस होते हैं जो कि बिल्कुल आपके थीटा बिहेवियर जहाँ अप्रॉक्सीमेट टाइम के करीब करीब लाई करते हैं, और इसको हम इस तरह से शो करते हैं टी ऑफ एन बिलोंग्स टू थीटा जी ऑफ एन। एस्टैब्लिशिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यूजिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है कि किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है किसी एक्सप्रेशन का निकालते हैं। तो एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ बिग ऑफ जी ऑफ एन डिनोट एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ जी एफ एन इफ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ जी ऑफ एन within constant multiplier. There exists positive constant c and non-integer value unknown such that f of n is less than equal to g of n for every n greater than n naught. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपने देखना है कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो है आपके पास उसका जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या वो इंक्रीज करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर ऑफ 10 n है, ठीक है, तो अगर इसका n से n स्क्वायर हो जाए तो इट्स मीन कि वो उसका वर्स्ट केस या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बढ़ गया है और वो वर्स्ट केस बन गया। इसी तरह एफ ऑफ एन प्लस 20 है, तो इसमें कैसे आप कहेंगे कि ये किस तरह से इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगा, ऑर्डर ऑफ n, कि ये इससे ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है और ये जो चीज़ है उसको उसने स्किप कर दिया और उसने शो कर दिया कि इसको बिग ऑफ ऑर्डर ऑफ n भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो केसेस के अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस का मतलब ये है कि वह उसने अपने फंक्शन की आउटपुट से थोड़ा आगे ही मूव करना है या उसे ग्रेटर होना है। ये ओमेगा नोटेशन है। ठीक है, a formal t of n said to be omega g of n denotes t of n belongs to omega g of n if t of n is bounded below by some constant multiplier of gn for all integer n, if there is some positive constant c and some non-integer n naught। ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन एक्सरसाइज इसकी देखने वाली है कि ओमेगा क्या होता है कि इसने हमेशा लोअर बाउंड को कंसिडर करना है।
ठीक है। लोअर बाउंड का मतलब ये है कि जैसे 10n स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बिलोंग्स टू ओमेगा n स्क्वायर। इसी तरह 0.3n स्क्वायर -2n है, तो इसमें से हमारे पास जो लोअर बाउंड है वो इसी में ही लाई करेगा, ओमेगा n स्क्वायर। इसी तरह से अगर इस वाले एक्सप्रेशन देखें तो इसमें लोअर बाउंड यहाँ पे क्यूब है, लेकिन क्योंकि लोअर बाउंड हम देख रहे हैं इसका, तो ये n स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप बिग ओ इसका देखते तो इस वाले फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का बिग ओ ऑफ n स्क्वायर हो सकता था, यानी सेम बिहेवियर के साथ। अगर थीटा में देखते तो थीटा ऑफ n स्क्वायर हो सकता था, ठीक है। लेकिन कभी भी ओमेगा n क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोअर बाउंड है। हाँ, बिग ओ में n क्यूब भी हो सकता है, थीटा में भी सम केसेस में हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से आप इन एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे। थीटा नोटेशन, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन t of n is said to be theta g of n denoted by t of belongs to g of n if t of n is bounded both above and below some positive constant multiplier of g of n for all large n. If there is some positive constant c and c1 and some non-negative integer and not such that ये आपका t of 1 जो है वो c2 g of n और c1 g n के दरमियान लाई करता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के दरमियान जो है ये अपर और लोअर बाउंड दोनों बिहेवियर्स में लाई करते हैं। तो एग्जांपल्स इसकी क्या है कि अगर 10n स्क्वायर है तो थीटा n स्क्वायर, अगर 0.3n स्क्वायर -2n है तो इसको हम लिखेंगे थीटा n स्क्वायर, क्योंकि अपर इन दो एक्सप्रेशन में से तो यही है। इसे हाफ n प्लस 1, तो इसमें से भी थीटा n स्क्वायर। तो ये इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो सर्कल्स हैं, ठीक है। अगर जी ऑफ एन यहाँ पे दरमियान में लाई कर रहा है, देखिए अपर एंड लोअर बाउंड दोनों का मिडल अगर होगा तो वो थीटा फंक्शन में आएगा, थीटा ग्रोथ में आएगा। और अगर वो उससे लोअर चला जाता है तो ओमेगा आएगा, और उससे हायर चलता है तो बिग ओ आएगा। तो ये इस तरह से हमने इसको फैक्टोरियल डायग्राम में इस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को शो किया है, और तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे भी करें। जैसे ओमेगा जी ऑफ एन फंक्शन दैट ग्रो एटलीस्ट एज फास्ट एज जी ऑफ एन। यहाँ पे थीटा यानी इक्वल का बिहेवियर है, सेम फंक्शन के ग्रोथ लेवल है, और यहाँ पे आपके पास वो नॉट फास्टर देन या स्लो फर्दर है। ये तीनों हमारे पास ग्रोथ के तीनों यहाँ पे फैक्टोरियल डायग्राम में आपके पास शो है। एक थ्योरम है कि if t of n belongs to big of g of 1n and t belongs to big of g 2n, then tn plus tn belongs to big of max g1 g1 है। यहाँ से आपको इस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपका फुल एक्सप्रेशन जो होता है उसमें से जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो आपके फंक्शन का बेसिकली उस वक़्त का उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता है। जैसे ये वाला एक आपके पास क्या कहते हैं एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो है एक n log of n है और n स्क्वायर है, तो इन दोनों में से वर्स्ट केस कौन सा है, n स्क्वायर। तो ये बिग O ऑफ n स्क्वायर हमने लिख दिया। और ये चीज़ हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, ये हम डिटर्मिन करते हैं अपने एफिशिएंसी क्लासेस से, जो कि नेक्स्ट पेज पे भी आएंगी, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो एफिशिएंसी क्लासेस है वहाँ से हम डिटर्मिन करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। इसी तरह से देयर मस्ट बी एग्जिस्ट C1 C2 एंड सच दैट, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि आपके पास हमेशा जो ये इस तरह से एक्सप्रेशन होगा उसमें से आपने उसका वर्स्ट केस निकालना है, ठीक है। बाकी मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन है, सिर्फ आपने यहाँ से यही चीज़ डिटर्मिन करनी थी। जी, यहाँ पे भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यूजिंग लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है t ऑफ n g ऑफ n, अगर वो 0 है तो ऑर्डर ऑफ t ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ g ऑफ n। अगर c की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाती है 0, तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ t ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ g ऑफ n, ठीक है। और अगर थीटा को एक्सटेंड करें तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ t ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ये आप समझ सकते हैं, ये आपके पास ओमेगा है, ये थीटा है, और ये बिग O जो कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ तक उसकी लिमिट जा रही है। जैसे एग्जांपल है 10n,
वर्सेस एन स्क्वायर। तो इन दोनों में से वर्स कौन सा है? ये वाला। इसी तरह ये दोनों है तो आप देख लें कि इन दोनों में से ये वाला आपके पास वर्स होगा। बेसिक एसिम्प्टोटिक क्लासेस, तो एफिशिएंसी क्लासेस का हमें ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि उसी बेस पे हम लोग वर्स्ट केस एक्सप्रेशन का निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट जो है, अगर आपके पास 1 है तो वो कांस्टेंट में आता है। 1 मीन कोई भी वेरिएबल हो, 1 से लेकर 100 तक जो भी वैल्यूज है तो वो आपकी कांस्टेंट क्लास में आएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट क्लास है लॉग ऑफ एन, यानी लॉग वाली क्लास। फिर आपके पास लीनियर आती है, यानी जिनका ऑर्डर ऑफ एन होगा वो हम लीनियर क्लास में, एफिशिएंसी क्लास में लेंगे। फिर दोनों लॉग ऑफ और एन को मल्टीप्लाई करके एन लॉग ऑफ एन, जो जिसमें दोनों बिहेवियर है, लॉग और लीनियर दोनों का। उसके बाद है एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक, फिर एन क्यूब क्यूबिक, और उसके बाद ये दो हमारे पास बियॉन्ड लिमिट्स जो है एफिशिएंसी क्लासेस, जिनमें एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल, यानी इनके बिहेवियर्स को बीट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सबसे वर्स्ट क्लास है। तो ये हमारे पास बेसिक एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी क्लासेस है। डिटेल आपकी इसकी बुक से भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। जी, यहीं तक हमारा लेक्चर था और इससे नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस पे अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास बेसिक एफिशिएंसी क्लासेस से किस तरह से एक्सप्रेशन ड्राइव होते हैं।